Forum is starting a residential program and specifically designed for those students who didn't clear prelims earlier. At that moment, I felt that this program is tailor-made for you because what you described in that email, it felt like somebody was describing me. नहीं सर, मैंने नहीं बनाया, ये मैं क्रेडिट नहीं लूँगा, आपने बनाया है, मैंने उसको गाइड किया है बस। और हर माता पिता करता है ना, कौन नहीं करता है सर, कौन नहीं चाहता है सर। Fortunately, sir, I cleared prelims and then, sir, the same schedule for mains FRC4 started at the same place and again I made the same promise. चाहे वो AWFG का टेस्ट हो या SFG का हो या करंट अफेयर्स की क्लास हो, I'll do it, सब कुछ करूँगा जैसा जैसा मुझे बताया जा रहा है. And fortunately it worked again. Then I stayed there for interview also and fortunately I got the rank. And before coming to FRC, literally there was a lot of broken confidence and I thought I would never be able to clear pre. This is the biggest hurdle of my life. But then ever since December, things changed and I just followed the plan to the hilt. Gave every test, even the open test, all the simulators, the CSAT simulators also. It was for the first time that I cleared the prelims, I cleared the mains, and then I cleared the interview and finally got a job under Government of India. I was a part of FRC1 and FRC4. So I think FRC played an instrumental role in making me what I am today. So I was scared, very honestly. I think a lot of my motivation for so many things is just a fear of failure. I'm not sure what a therapist or a psychologist might say about that. मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा सिंह है। मैं गाज़ीपुर ज़िले से रहने वाली हूँ। मैं ऐसे पेशे से डॉक्टर हूँ। मैंने MBBS और मास्टर्स कर रखी है। मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें मेरी 301 रैंक आई है UPSC CSE 2025 में। So first is a sense of discipline, whether that's SFG or sometimes that I followed in AWFG also for the mains part. A sense of discipline that this is the target for the day. You got to complete your syllabus, immaterial whether you're completing 80%, 70%, 100%, but you have to come up, show up every day and write the test. Many congratulations to all of you who have cleared the prelims. Let us give them a big hand. I subscribed to the second level of SFG. I think I told you so. I'd gotten to know about sir from a very close friend, which was honestly like my paradigmatic change, if you will call it, towards prelims preparation came when I heard sir speak on prelims. Everyone, please welcome Nikhil Yadav. He has secured rank 36 in the Forest Service examination. Let us give him a big hand. So, Nikhil has been a student here for quite some time. So, first, many congratulations, Nikhil. ये बताइए जब रिजल्ट आया तो क्या कर रहे थे और हाउ वाज योर फीलिंग? सर पढ़ रहा था मैं प्रीलिम्स के लिए एंड जैसे रिजल्ट आया आई सॉ माय नेम, तो मेरे दोस्त ने मुझे PDF भेज दी थी। आई सॉ माय नेम एंड आई फर्स्ट जो रिएक्शन था वो था कि बहुत ग्लैड फील हो रहा है और बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हो रहा है कि ऑल इंडिया सर्विस मिल रही है, बिकॉज इट वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट इन CSE और सेकंड अटेम्प्ट था फॉरेस्ट में। जो रिलीफ फील हुआ सर वो बहुत बड़ी चीज़ थी। देन आई टोल्ड माय पेरेंट्स और वो मोमेंट जो था वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था। दे वर वेरी हैप्पी, पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी। निखिल ये बताइए कि प्रीलिम्स फॉरेस्ट निकालने के लिए प्रीलिम्स में कट ऑफ को, मतलब प्रीलिम्स को सिविल्स के कट ऑफ से काफ़ी ऊपर स्कोर करना पड़ता है। तो आपने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की थी कि आपके मेरे ख्याल से 115-16 नंबर भी बने थे पहले, है ना? 117 कट ऑफ से 20 नंबर ऊपर, सिविल सर्विसेज के कट ऑफ से 20 नंबर 25 नंबर ऊपर। तो आपने प्रीलिम्स के लिए मतलब इतना हाई स्कोर लाया, तो उसकी आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, क्या चीज़ें आपने की थी उसके लिए? सर मैंने स्टैटिक पे बहुत अच्छे से काम किया, तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत या फिर स्पेक्ट्रम मैंने बहुत बार पढ़ी है। 10-12 टाइम्स भी पढ़ी होती मैंने, उसे बार बार पढ़ा, रिवाइज किया अच्छे से। और करंट अफेयर्स पे इतना ज़्यादा नहीं किया। क्वार्टरली उठाई मैंने, क्वार्टरली पे बहुत बार रिवाइज किया, बस एक ही सोर्स उठाया उसे बार बार रिवाइज किया रेदर देन गोइंग फॉर मल्टीपल सोर्स। SFG क्वार्टरली जो रहता था, SFG क्वार्टरली बस वही। और SFG ज्वाइन किया था मैंने, SFG लेवल 1 लेवल 2 दोनों ही टेस्ट मैंने सारे ही दिए हैं, एक भी मिस नहीं किया। एंड आई ट्राई टू इंश्योर कि उसमें मैं टॉप 20 या टॉप 30 में रहूँ। तो बहुत टेस्ट में था मैं, तो इसमें नहीं भी था, बट वो जो पुश होता है वो मुझे काफ़ी मिला कि जिस दिन नंबर बेकार भी आए तो वो फील हुआ कि अगले टेस्ट में ज़्यादा नंबर लाने हैं। और सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा था SFG में, जहाँ पे मेरे 60s भी आते थे तभी कभार, तो मुझे लगता था कि बाकी लोगों के 80s आ रहे हैं तो उन्हें भी डिफीट करना है। तो वो जिस सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन मिलता है SFG से, वो बहुत मुझे हेल्प किया।
और एसएफजी में आपकी बेस्ट रैंक क्या थी और वर्स्ट रैंक क्या थी? ऑल इंडिया रैंक 1 बेस्ट, और वर्स्ट थी सर मेरी 400 के आसपास। तो ये जब 400 रैंक आती है हमारी, जब हमारी फर्स्ट रैंक भी आ सकती है, उसके बाद 400 आती है, तो मैं कई बच्चों को देखता हूँ कि रैंक जैसे खराब हुई मोटिवेशन खत्म और अगले दिन से गायब। तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते थे? सर इसमें मैंने ये काम किया था कि 2023 में जब मैं फेल हुआ था, उसके बाद मैंने अपने आप से सेल्फ टॉक की और मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि एसएफजी में टॉप 20 से नीचे नहीं रहूँगा मैं, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो जो स्टैंडर्ड मैंने अपने लिए सेट किए उसे मैंने फुलफिल करने की कोशिश की। तो इसके बाद जब बुरा आता था तो मैं डीमोटिवेट नहीं होता था, मुझे गुस्सा आता था कि अब इतने विराट कैसे आ रहे हैं, नो में पोटेंशियल थी, आई हैव सिक्योर्ड टॉप 10 रैंक भी इससे पहले। तो जब बुरे आते थे तो वो मोटिवेशन की तरह होता था मेरे लिए, तो कि अगली बार दोबारा लाने हैं, और हुआ भी ऐसा। तो मैं एनालाइज करता था सारे पेपर जहाँ पे मेरे किसी टेस्ट में बेकार है, और सारा गो थ्रू करता था, दोबारा नोट्स अच्छे से रिवाइज करता था, एक रिवीजन की लिस्ट रिवीजन एक और बार कर लेता था कि इस बार तो लाने हैं। तो ये चीज़ होती है मेरे लिए। तो ये जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनमें आपको क्या लगता है कितनी बार रिवीजन करना चाहिए? 1 या 2 बार? अभी मैं देखता हूँ कई बार कि बच्चे एक बार या 2 बार पढ़ के या एक बार ग्लैंस करके पेपर देने आते हैं, फिर क्वेश्चंस नहीं होते तो उनको लगता है कि एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है और उनको लगता है एक और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। तो आपने कितनी बार, क्या अभी 1-2 बार पढ़ के जाते थे, आपके नंबर ऑफ रिविजन्स कितने रहते थे? मैंने बिकॉज मुझे टाइम हो गया और मेरा थोड़ा क्यूमुलेटिव प्रिपरेशन भी रहा है कि पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो उसके बाद भी मैंने पढ़ाई था, तो ओवरऑल मिला के मतलब 10-15 टाइम्स तो एटलीस्ट हो ही गया होगा सारे सब्जेक्ट्स। 10-15 टाइम्स लगभग आपने ओवरऑल मिला लिया होगा। लेकिन जिस साल, मान लीजिए कि पहले साल जब आपने प्रीलिम्स की सबसे अच्छी से तैयारी की थी, उस समय आपने कितनी बार रिवाइज किया था? सर एसएफजी 1 तो मतलब पूरा एक बार रिवीजन हो गया, और हर टेस्ट से पहले मैं इंश्योर करता था कि 2 बार रिवीजन हो जाए मेरा, 2 या 3 बार। तो SFG 1, SFG 2 तो 2 बार तो वैसे ही हो जाए, आप मल्टीप्लाइज बाय 2 टाइम तो एटलीस्ट 4-5 बार तो हुआ है। 4-5 बार आपके रिविजन्स हो जाते थे। और फोरम IAS से आपने क्या क्या प्रोग्राम्स किए थे? क्या सपोर्ट आपको फोरम से मिला? किस चीज़ों से खुश थे आप फोरम से? फोरम सर सारी चीज़ों से मैं बहुत खुश हूँ, चाहे वो SFG हो जाए चाहे MGP हो। मैंने यहाँ पे SFG किया हुआ है दोनों बार, 2023, 24 और 25 में ऑनलाइन किया है। MGP ज्वाइन किया है हर साल, और उसके बाद AWFG ज्वाइन किया है मैंने। एंथ्रोपोलॉजी के लिए मैंने वो ज्वाइन किया था, AWFG एंथ्रोपोलॉजी वाला, और मैंने आपकी क्लास भी ज्वाइन किया है एथिक्स वाली, तो एथिक्स प्लस क्लास, ये सारा कुछ है। 65% of IS toppers under rank 10 and 20 in CSE 2025 final list have been students of Mains Guidance Program MGP by Forum IS Academy, including rank 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19. Mains Guidance Program MGP 2026 to 27. Join Mains Guidance Program, India's most trusted program for mains preparation. To know more about MGP, speak to an IS topper near you or email us at contact@forumis.com. अभी बताइए कि यू हैड अ लॉन्ग जर्नी, 2-3 साल आपको प्रिपरेशन में लग गए। व्हाट डू यू थिंक दैट नाउ यू आर इन द इन द होली PDF इन द फॉरेस्ट सर्विसेज, व्हाट डू यू थिंक दैट 2-3 क्वालिटीज आपकी हैं जो आपके दोस्तों में या आपके आसपास कुछ जो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यू आर एबल टू क्रॉस द लाइन एंड सम पीपल वर नॉट? तो ठीक है, लक और का एक एलिमेंट होगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर सम ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया व्हिच यू थिंक दैट यू वर एबल टू हैव एंड अदर्स डिड नॉट, व्हिच मेड यू सक्सेसफुल? सर इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि लक सर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो मेरे से शायद ज़्यादा ही स्मार्ट हों, सब कुछ हो, बट उन तो नहीं हो पा रहा, तो लक तो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल। बट अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे लगता है कि जब मेरे नंबर बुरे आते थे तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन फील होती थी, तो एक कॉन्स्टेंट सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन फील होना, आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव, तो किसी टाइम मुझसे ज़्यादा नंबर आते थे तो मुझे थोड़ा बुरा फील होता था, देन आई यूज्ड टू वर्क हार्ड। तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, और दूसरा बात अपनी गलती से सीखने वाली अप्रोच। तो जब मेरे नहीं किसी भी टेस्ट में बेकार आते थे, देन आई यूज्ड टू लाइक सिट विथ माई सेल्फ फॉर 2-3 आवर्स एंड फिगर आउट कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। आई यूज्ड टू टॉक टू माई सेल्फ अलॉट, तो ये चीज़ मेरे लिए होती है। प्रीलिम्स अगर किसी को क्लियर करना है विद मार्जिन, जैसे आप लोगों ने मल्टीपल टाइम्स फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर किया, तो क्या 2 या 3 चीज़ें क्या करनी चाहिए उसे? प्रीलिम्स के लिए नंबर 1 स्टैटिक बहुत अच्छे से करना है, नंबर 2 टेस्ट लगाने हैं, इनफ नंबर ऑफ टेस्ट 30 के आसपास, और बार बार सेम चीज़ पढ़नी है रेदर देन गोइंग फॉर मल्टीपल सोर्सेज।
और सेंस ऑफ कंपटीशन अदर सेंस ऑफ कंपटीशन तुम्हारे पास आसपास हो ना तो और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो हैव अ पीयर ग्रुप जो तुम्हें कॉन्स्टेंटली पुश करें और मतलब सिमिलर अप्रोच होनी चाहिए उन लोगों की भी या सिमिलर गोल होना चाहिए। तो एक अप्रोच कुछ बच्चों का रहता है कि वो MGP या SFG करते हैं और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज कर लेते हैं, सिमुलेटर्स कर लेते हैं। दूसरा कुछ बच्चे जितने टेस्ट होते हैं मार्केट में जो भी हो रहा है 10 कोचिंग के तो वो सारे करते हैं। तो आपका लगभग क्या अप्रोच था इसमें? सर मैंने अपने आप से बोल दिया था 2024 में कि आई वुड गिव 20-30 टेस्ट के आसपास, 20-25 के आसपास। तो उसमें फिर मैं थोड़ा पिकी हो पाया कि जो भी कोचिंग के टेस्ट जो इंपॉर्टेंट चल रहे हैं मैं उन्हीं तो दूंगा जिनमें मुझे ट्रस्ट है। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो तुम्हारा बस मोरल डाउन करते हैं, वो रेलिवेंट क्वेश्चंस होते नहीं हैं, एब्सर्ड फैक्ट पूछ लेते हैं, तो उतना नहीं करना चाहिए। स्टैटिक से जो रेलिवेंट टेस्ट हो, जो स्टैटिक पूछ रहे हैं या फिर PYQ अलाइन है वो करनी चाहिए। जैसे सिमुलेटर की बात मुझे यही अच्छी लगती है कि हर टेस्ट ना थोड़ा अलाइन होता है PYQ के हिसाब से। 2023 का पेपर, एक टेस्ट में तुम्हें 2023 का पेपर मिल जाएगा, फिर 2024 मिल जाएगा, 2025 मिल जाएगा। तो लास्ट 10 ईयर से PYQs तो सिमुलेटर के थ्रू ही हो जाते हैं सारे। तो लिमिट रहना चाहिए 10-20 टेस्ट, बट थोड़े रेलिवेंट होने चाहिए। वंडरफुल। वन लास्ट क्वेश्चन, कितने घंटे पढ़ते थे? टॉपर्स कितने घंटे पढ़ते हैं? सर मेरा बहुत ज़्यादा वेरी करता था, बट आई यूज्ड टू इंश्योर, मतलब आई ट्राई टू इंश्योर कि 8 आवर्स पढ़ पाऊँ मैं। 8 आवर मैंने अपने लिए मिनिमम सेट किया था, इतना तो होना चाहिए, पर नहीं हो पाता था। फिर वो 4 आवर्स भी होता था, 3 आवर्स भी होता था कभी कभार। बट जब 4 आवर 3 आवर होता था तो अपने आप को बुरा फील होना चाहिए कि अब 8 आवर्स करने अगले दिन। तो अभी 10 भी होता था एग्जाम के पास, तो 10-12 भी हो जाता था। सो व्हाट वर यू, अर्ली राइजर, नाइट आउल या नॉर्मल बिल्कुल ड्यूरेनल एनिमल? आई यूज्ड टू स्लीप अराउंड 12 or 1 and then wake up around 8 or 9. Chalo, wonderful. Thank you so much. Now we have the success bell. Okay, so you can ring it as many times as you want. So this is for you, Nikhil. सबसे बढ़िया वाली पेस्ट्री आई है तुम्हारे लिए। Blow the candle and चलो मैं खिलाता हूँ तुम्हें। थैंक यू सो मच और बहुत अच्छा करो, ठीक है। Forum is starting a residential program and specifically designed for those students who didn't clear prelims earlier. At that moment, I felt that this program is tailor-made for you because what you described in that email, it felt like somebody was describing me. नहीं सर, मैंने नहीं बनाया, ये मैं क्रेडिट नहीं लूँगा। आपने बनाया है, मैंने उसको गाइड किया है बस। और हर माता पिता करता है ना, कौन नहीं करता है सर? कौन नहीं चाहता है सर? Fortunately, sir, I cleared prelims and then, sir, the same schedule for mains FRC4 started at the same place and again I made the same promise. चाहे वो AWFG का टेस्ट हो या SFG का हो या करंट अफेयर्स की क्लास हो, आई विल डू इट। सब कुछ करूँगा जैसा जैसा मुझे बताया जा रहा है एंड फॉर्चुनेटली इट वर्कड अगेन। देन आई स्टेड देयर फॉर इंटरव्यू आल्सो and fortunately I got the rank. And before coming to FRC, literally there was a lot of broken confidence and I thought I would never be able to clear pre. This is the biggest hurdle of my life. But then ever since December, things changed and I just followed the plan to the hilt. Gave every test, even the open test, all the simulators, the CSAT simulators also. It was for the first time that I cleared the prelims, I cleared the mains, and then I cleared the interview and finally got a job under Government of India. I was a part of FRC1 and FRC4. So I think FRC played an instrumental role in making me what I am today. So I was scared, very honestly. I think a lot of my motivation for so many things is just a fear of failure. I'm not sure what a therapist or a psychologist might say about that. मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा सिंह है। मैं गाज़ीपुर ज़िले से रहने वाली हूँ। मैं ऐसे पेशे से डॉक्टर हूँ। मैंने MBBS और मास्टर्स कर रखी है। मैं गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था जिसमें मेरी 301 रैंक आई है UPSC CSE 2025 में। So first is a sense of discipline, whether that's SFG or sometimes that I followed in AWFG also for the mains part. A sense of discipline that this is the target for the day. You got to complete your syllabus, immaterial whether you're completing 80%, 70% or 100%, but you have to come up, show up every day and write the test. Many congratulations to all of you who have cleared the prelims. Let us give them a big hand. I subscribed to the second level of SFG. I think I told you so.
I'd gotten to know about sir from a very close friend, which was honestly like my paradigmatic change, if you will call it, towards prelims preparation came when I heard sir speak on prelims. 65% of IS toppers under rank 10 and 20 in CSE 2025 final list have been students of Mains Guidance Program MGP by Forum IS Academy, including rank 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19. Mains Guidance Program MGP 2026 to 27. Join Mains Guidance Program, India's most trusted program for mains preparation. To know more about MGP, speak to an IS topper near you or email us at contact@forumis.com.